नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. My name is Hatim Ghafoor. I'm currently working as Director of Projects and Communication for Hygiene Corporations USA. I'll be going through this course of human resource development for you guys. As of a short introduction about myself, I have worked in different organizations around the globe, mostly abroad, in Halliburton, British Petroleum, Landmark Graphics, USAID, and now Hygiene Corporations. I've worked in different capacities as Manager Human Resource, Director of Projects, Director of Communication. In past 15 years, as of my whole experience, I came to a conclusion, that is, even as Director of Projects, my conclusion is that every project, every assignment, everything that is done by an organization is actually done by human resources. So, the most important resource in any organization or in any community are the human resources. The development of human resources is next to the most important thing. So anyway, let's start with the topic of human resource development, and we'll start with the course introduction. I have designed this introduction, and you can see that I have underlined certain words, that is to evaluate, analyze, and apply techniques. So in this course, we will first evaluate different kind of techniques, analyze those techniques, and then the application of those techniques to effectively promote the training. Now this is the important part for human resource development, not human resource management. It's actually the subspecialization of human resource management, that is HRD, which includes training and development of human resources within workplace and community organizations to increase now comes the benefit part, is awareness, how you train and develop your resources so that they can become more organizational aware, work aware, workplace aware, and socially aware. Not only aware, but knowledgeable and understanding of trends and issues. Why we actually train and develop the human resource, so that they understand the trends and issues related to the development of healthy organization. In the last part, you can see equipped to deal with rapid change. Now this is the crux, the reason I said when I work in various capacities, the conclusion of my work was to make your resources aware, to make your resources knowledgeable, and to mold them in such a way that they can adapt to certain and various changes that are occurring in or outside the organization. In this course introduction, I'll start with one simple example, that is how to upbring your child. All those people who are married, happily married, mashallah, and having a family, 1 or 2 children, they can easily understand what I'm trying to say over here. जैसे हम लोग औलाद की परवरिश करते हैं, हम किसी पिछले ज़माने के लिहाज से नहीं करेंगे. Obviously, हम एक करंट ट्रेंड के लिहाज से, करंट एरा के लिहाज से हम उनकी परवरिश करेंगे या उनको पालेंगे, so that कि वो कल जो आने वाला कल है, वो उस आने वाले कल में वो एक अच्छे इंसान के तौर पे उस सोसाइटी का पार्ट बन सकें, उस घर का पार्ट बन सकें. ना कि हम कोई उनको ऑर्थोडॉक्स किस्म की ट्रेनिंग देंगे जिसकी वजह से वो सोसाइटी का भी एक अच्छा पार्टनर बन सकें, ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं घर बोलूँगा, घर का भी एक अच्छा पार्टनर बन सकें. उस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा. As of now,
यहाँ से मैं चाहूँगा कि आप ये औलाद को या अपब्रिंगिंग, चाइल्ड अपब्रिंगिंग, उस एस्पेक्ट को अपने जहन में रखें और फिर इस कोर्स को आप पढ़िएगा। जब आपके जहन में ये एग्जाम्पल होगी कि आपने औलाद को कैसे पालना है, क्योंकि हम लोग, इट इज़ माई हैबिट, मैं एक बड़ी से बड़ी रॉकेट साइंस भी जो है, कायनात के बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट भी जो है वो एक छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है। सो फर्स्ट वी हैव टू डेवलप दैट फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन डेवलपमेंट के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने जहन में ये औलाद को पालना या बच्चों को पालने या उनकी जो परवरिश है उसको अपने जहन में रखें और फिर उसको जो है मैप करें आप विद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो रैपिड चेंज है, दिस रैपिड चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन कि आप इवन अगर आप खुद हैं, आप अपनी अगर बात करते हैं, या इवन के जैसे आप देख लें कि आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं या आपने ये डिग्री जो है वो चूज की है, किस लिए? सो दैट कि जो आने वाला कल है उसमें अगर आप कोई फंक्शन परफॉर्म करने का आपको कहा जाए तो आपके पास वो नॉलेज हो। यू आर एक्चुअली बीन ट्रेन्ड थ्रू दीज लेक्चर्स एंड थ्रू दीज कोर्स मटेरियल्स, यू विल बी ट्रेन्ड, और वो एक स्पेसिफिक आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी आपके। यू विल बी नॉलेजेबल, यू विल बी अवेयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यू विल बी अवेयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस्पेक्ट। सो इस कोर्स का जो बेसिक मकसद है, द रीजन आई एम सेइंग इट्स अ कोर्स इंट्रोडक्शन, कि आप वो जो रैपिड चेंजेस आ रही हैं आपके मार्केट में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं, आप उन ट्रेंड्स को देखते हुए अपने आप को या अपने रिसोर्सेज को आप इजीली डेवलप कर सकें, ट्रेन कर सकें, मैनेज कर सकें। Now the course objectives, there are actually 5 course objectives. They are a bit lengthy but not very awkward in a way. They are actually demonstrate knowledge, analysis and application of professional development theories. Now the reason I said before कि बड़े से बड़ी रॉकेट साइंस दुनिया में जो इस वक्त काम हो रहा है या कोई चीज़ डेवलप हो रही है या कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, वो बेसिकली कुछ थीरीज़ के ऊपर डेवलप हुई हैं। उन थीरीज़ को हम स्टडी करेंगे और वो प्रोफेशनल थीरीज़ को आगे लेके कि उनके स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस क्या है फॉर ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड इज आर्टिकुलेट ethical and legal issues. Now obviously when you are upbringing a child, अगेन मैं इस सारे कोर्स में वो चाइल्ड अपब्रिंगिंग एस्पेक्ट को मैं साथ रखूंगा, बिकॉज फॉर मी इफ कैन अपब्रिंग अ वन पर्सन इन योर लाइफ, यू कैन ऑब्वियसली अपब्रिंग थाउजेंड एंड मिलियंस। अगर आप एक पे सक्सेसफुल हुए हैं सैम्पल स्टडी के तौर पे, एक एरिया में आपने अपने आप को सक्सेसफुल कर लिया है, उसी एरिया की जो एप्लीकेशन है वो अगर आपको 1000 पीपल के ऊपर भी करने को कहा जाए तो आप उसको आसानी से कर सकोगे। सो जब चाइल्ड अपब्रिंगिंग आप करते हैं तो वी ऑलवेज टेल देम द एथिकल एस्पेक्ट, द मोरालिटी, द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट, उन चीज़ों को हम हमेशा जहन में रखते हैं। तब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, ये काम इस तरह करना है, इसमें गुनाह है, इसमें अच्छाई है, आप इस तरह गेम्स खेलोगे तो उसके ऊपर आपका हेल्दी इफेक्ट आएगा, आप इस तरह अगर बैड हैबिट्स की तरफ जाओगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, इनको हम एथिकल इश्यूज कहते हैं। सो सेम इज़ द केस, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, आपने उनकी भी उसी तरीके से डेवलपमेंट करनी है सो दैट दे कैन बिकम अ गुड पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और द सोसाइटी। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद इन द वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑटोनॉमी, इक्विटेबल एक्सेस एंड सर्विस। Next is engage in a critical analysis of organizational, job or individual needs. Okay. You can never, in human resource development or human resource management, whenever you are dealing with human resource, you can never actually omit, I'll use the word omit, the analysis aspect
ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपने उनको एनालाइज किन बेसिस पे करना है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसकी बेस पे आप उनको एनालाइज करोगे, और ऑब्वियसली जब आपने उनको मोल्ड करना है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के वो पैरामीटर्स देखोगे और फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज के पैरामीटर्स को देखोगे। उन पैरामीटर्स को आपने आपस में मैप किस तरह करना है, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट इज डेवलप अ ट्रेनिंग प्लान टू एड्रेस identified needs as they relate to job performance, reskilling of workforce or professional development. When those areas or variables are identified, जब वो आपके variables identify हो जाएंगे organization के भी human resource both के, तो फिर उसमें आपने मोल्डिंग पार्ट आपने इंक्लूड करना है। रीस्किलिंग जिसे आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, दैट रीस्किलिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू मोल्ड योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन खुद से काम नहीं करती है, ऑर्गेनाइजेशन इज not a living resource, organization is dependent upon the human resources। वो चाहे मशीनरी काम कर रही है लेकिन उस मशीनरी को भी कोई ह्यूमन रिसोर्सेज चला रहे होंगे। सो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। सो उस मैपिंग के लिए आपने उनको रीस्किल करना है। देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन द मार्केट। बहुत से लोगों की डिग्री कुछ और होती है, दे गेट अ जॉब ऑफ समथिंग एल्स, उनकी स्टार्टिंग जॉब कुछ और होती है। ऑब्वियसली उन्होंने मार्केट से अपने आप को रिकग्नाइज करवाना है, मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। सो दे लुक फॉर अ जॉब, व्हेन दे लुक फॉर अ जॉब, एनीथिंग दैट दे फाइंड, एनीथिंग दैट कम अक्रॉस देम, दे विल अडॉप्ट दैट थिंग। और फिर उसके बाद वो अपने आप को उस चीज़ में मोल्ड करते हैं, अपने आप को उस चीज़ में डेवलप करते हैं। सो वो रीस्किलिंग ऑफ वर्क फोर्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा। एंड द लास्ट वन, नॉट द लीस्ट, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, current trends and strategies relevant to recruiting, selecting, supervising, evaluating and retaining organizational or community volunteers. Okay, why I use the word volunteers? That's the least thing over here. The most important one over here is these different words. These are not only words, there are basically different theories for human resource development. ये उनके मुख्तलिफ steps हैं, not only theories but there are also steps. That is current trends, जो current trend market का चल रहा है। अगर आपने अपने organization में current trend आपने उसको adopt नहीं किया, आपके resource रिटेंशन वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। आपका रिसोर्स आपके पास नहीं रुकेगा। जैसे ही उसको दूसरी जगह पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, वो ऑब्वियसली वो आपको छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला जाएगा। स्ट्रेटजीज फॉर रिक्रूटिंग, ऑब्वियसली आप वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से रिक्रूटिंग को अवॉइड करना चाहोगे। सिलेक्टिंग, आपने रिसोर्स सिलेक्ट किस तरह करना है फॉर स्पेसिफिक जॉब, आपने उनको सुपरवाइज कैसे करना है, और सुपरविजन के बाद आपने उनको किन किन वेरिएबल्स पे, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बेसिस पे आपने उनको एवेल्यूएट करना है। ऑब्वियसली वो एवेल्यूएशन ना सिर्फ रिसोर्स परफॉर्मेंस की तरफ जाएगी बल्कि इवेंचुअली वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस या प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाएगी। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज एक्चुअली योर ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट। ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट इज योर टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। आपका टाइम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो बेस करती है वो इन तीन चीज़ों पे बेस करती है। नंबर वन इज योर टाइम, number two is your cost, number three is your quality, or you can say scope. So ये तीनों चीज़ें, as I said before, in my past 15 years of experience, I came to the conclusion that these project performances are based on human resources, or human performance का बहुत बड़ा, you can say it's more like 70-30%, 70% impact जो है वो आपके human resources का होता है। How effectively and efficiently you use or utilize your human resources for the success of the project and organization. So ये आपके कोर्स के objectives हैं। Reference material, your required textbook would be Carrick, Informal Learning in Workplace, Unmasking Human Resource Development, New York, Routledge. Next one is Swanson, Holton, Foundation of Human Resource Development, San Francisco, Kohler.
Recommended textbooks would be Continuing Professional Education in Transition, Visions for the Profession and New Strategies for Lifelong Learning, Roden Workplace Learning Principles and Practices, Krieger, and obviously your course material, these lectures and the slides itself. Assessments and grading, I'm sure you are very much familiar with the Institute assessment and grading system. There would be 2 quizzes. One would be due after 5th lecture. Second one would be due after 12th lecture. The total mass or the percentage would be 5% and 10%. Assignment 1 would be after 21 lectures, 10%, midterm exam after 18 lectures, 25%, and final exam 32 lectures, total marks 50%. Quizzes plus assignment is equal to 25, midterm exam is equal to 25, and your final exam would be of 50% to perform well. Okay, in this first lecture, I will spend as much time as I can on few concepts, so that once we build our foundation, उसके बाद हमारे लिए वो चीज़ लेके आगे चलना बहुत आसान होगा. I always tell people in my organization or wherever I teach कि कॉन्सेप्ट हमेशा छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर बिल्ड किया जाए. जितनी आसान चीज़ के ऊपर आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आप उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी $multi-billion एंटरप्राइज पे भी आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपकी हमेशा सक्सेसफुल होगी. आपने अगर उसको छोटी चीज़ पे स्टार्ट किया, इफ़ यू स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स, और आपने उसको बड़ी चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया, इट वुड बी अ ह्यूज सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट. सो हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग कोर्स कंटेंट्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग फर्स्ट जो लेसन है हम उसको स्टार्ट करेंगे. देयर आर एक्चुअली डिफरेंट लेसन्स और हर लेसन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं. हर टॉपिक के आगे फर्दर सब डिवीजन है. सो द फर्स्ट लेसन इज ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेंड्स एंड इश्यूज, other aspects of human resource. Lesson 2 is legal and ethical issues and practices related to human resources. Next is historical perspective. Obviously हमें as laureates of human resource development हमें इसका background ज़रूर पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डेवलप कहाँ से हुई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. वो भी एक ज़माना था कि जहाँ पे लोग जो है वो बस आते थे, खेती बाड़ी करते थे और बस चले जाते थे. अभी भी वो ज़माना है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि वो खेती बाड़ी का सिस्टम जो आज से 20 साल 25 साल पहले चल रहा था, क्या आज भी वो चल रहा है? नो, आई बेग टू डिफर. आज वो नहीं चल रहा. आज उसमें भी इटसेल्फ स्पेशलाइजेशन आ गई है, और वो स्पेशलाइजेशन उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर या सडनली उन्होंने वो स्पेशलाइजेशन स्टार्ट नहीं की है. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव लर्न डिफरेंट स्टेप्स, different specialization, different focus on certain areas, and then they come to know कि हाँ ये चीज़ हम इस तरीके से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस काम को इस बंदे को दे दो, ये काम ये बंदा कर लेगा. सो वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने थ्रू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन्होंने सीखी. Ethical issues, again, very important while you are developing your human resources in an organization. Personal and organizational ethical practices. Lesson 3, training and professional development, contemporary trends and issues. Okay. बहुत से लोग आज भी, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो आज भी वो पुराने घिसे पिटे जो उनके सिस्टम हैं या वैल्यूएशन सिस्टम है या पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है, वेटेज सिस्टम है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन सिस्टम है, रिटेंशन सिस्टम है, रिक्रूटिंग सिस्टम है, स्टाफिंग सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम आज भी वो पुराने के पुराने यूज़ कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन क्या उन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से एक नई चीज़ डेवलप की जा रही है या आप नई चीज़ डेवलप करने की तरफ जाएंगे? सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इसमें टेक्नोलॉजी का कहाँ तक, किस हद तक काम है? ये जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसमें टेक्नोलॉजी किस हद तक अपना रोल प्ले करती है?
Professional development for the 21st century. How to make yourself an effective resource for the 21st century. Rather, 22nd century की तरफ हम लोग अब उसको देखना शुरू हो गए. Preparing for an aging workforce. आपके वो वर्कफोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. कुछ लोग जो अरसा दराज से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं और वो नियर टू रिटायरमेंट आते हैं. उस वर्कफोर्स को आपने कैसे प्रिपेयर करना है. डिस्टेंस ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इसका मेरे साथ भी बहुत ताल्लुक है. इन अ वे कि व्हाइल आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान एंड मैनेजिंग 5 प्रोजेक्ट्स इन 5 अदर कंट्रीज एज ऑफ मिया रीजन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन. I am working for 5 other countries while sitting in Pakistan. So वो distance training और learning ना सिर्फ आपकी यानी कि मेरी, बल्कि जो human resource जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से की जा सकती है. Lesson number 4, training and professional development, organizational growth and development. Professional development is more like the comparison kind of a thing कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किस हद तक इफेक्टिव होती है. बैलेंसिंग इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड. एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को, इंडिविजुअल नीड्स को और फिर एक टीम या एक ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी नीड्स को आपने आपस में बैलेंस कैसे करना है. किसी एक को आप ज्यादा वेटेज दोगे तो दूसरे इफेक्ट होंगे, दूसरों को वेटेज दोगे तो पहला इफेक्ट होगा. सो आपने वो बैलेंस आपने किस तरीके से कायम करना है. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी और फॉर ऑल ऑफ अस कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, उसका जो इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स पर आता है उसको आप कैसे साथ लेके चलेंगे. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई टेक एरिया में जा रही हो और वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हो और आपका जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के ऊपर चल रहे हो, या उनकी जो थिंकिंग है या उनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी उसी लेवल की हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट के टाइम में थी. तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन या तो सस्टेन नहीं कर सकेगी या वो रिसोर्सेज सस्टेन नहीं कर सकेंगे एंड इवेंचुअली इज गोना come up with a huge loss. Creating the learning organization. जैसे घर होता है, मैं फिर कहूँगा again come back to the basics. जैसे घर होता है, बच्चे के घर उसकी learning organization है. उस learning organization में जो माँ है, mother is actually the first institute for the child. So वो जो आपने घर का माहौल किस तरीके से बनाना है कि आपका बच्चा वहाँ पे लर्न कर सके, ग्रो कर सके, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी. लर्निंग कम्युनिटीज, ऑब्वियसली आपकी कोशिश होती है, अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, आपकी कोशिश होती है कि बच्चे ऐसे लोगों में उठे बैठे या ऐसे कम्युनिटी में आप रहें जहाँ पे बच्चे कुछ सीख सकें, ना कि आवारा लोगों में या आवारा लोगों की कैटेगरी में वो जाएं, बल्कि वो कुछ लर्नेड किस्म के लड़के, लर्नेड किस्म के प्रोफेशनल्स या फैमिलीज की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो. लेसन 4 इज ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग, delivering and evaluating training and staff development programs. Very important topic for all of us. वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर सकते हैं. ट्रेनिंग करने के बाद सुपरवाइज करने के बाद उनको एवेल्युएट कर सकते हैं कि उनका किस हद तक वो इफेक्टिव रही है वो ट्रेनिंग उनके ऊपर. ऑब्वियसली व्हेन यू ट्रेन समवन यू आर पुटिंग सम मनी ऑन दैट. व्हेन यू आर पुटिंग सम मनी ऑन दैट इट मींस यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर रिसोर्सेज. अब वो उस रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का हम लोग ROI जब कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दैट रिसोर्स, तो वो हमारे किस हद तक हमें बेनिफिशियल होता है, तो हम लोग उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे. मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड स्टाफ डेवलपमेंट, वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसकी बेस पे आप जो स्टाफ है उसको डेवलप करते हैं. सेल्फ मैनेजिंग वर्क टीम. फाइनली आप इस सारे लेक्चर्स या इस कोर्स में आप एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंच चुके हों कि आपके जो रिसोर्सेज हैं अगर उनको अकेले काम करना पड़ जाए या वो जिसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजिंग, उस एस्पेक्ट में उनको काम करना पड़ जाए तो विदाउट सुपरविजन तो वो किस हद तक बेहतर परफॉर्म करेंगे
ये आपका एक फाइनल गोल होना चाहिए। क्या वो एज अ टीम मेंबर, एज अ टीममेट वो काम कर सकते हैं, टीम प्लेयर के तौर पे काम कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो आप उनको किस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो ना सिर्फ एक टीम प्लेयर के तौर पे काम करें, बल्कि कल को अगर उनको इंडिविजुअली टास्क भी एलोकेट किया जाए, कोई भी काम एलोकेट किया जाए, जॉब एलोकेट की जाए, या उनको किसी जगह पे जाके दूसरी टीम को मैनेज करना है, तो वो किस तरीके से बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकेंगे। दिस शुड बी योर फोकस। Okay, gentlemen, we'll start with the overview of human resource. Now the point is, courses of human resource development, then why are we studying or starting with human resource basics? The next slide will give you the answer. That is human resource and human resource development. Human resource planning, recruitment and selection. These are actually, all these parts, all these areas are of human resource management. Human resource management एक bird eye view है. It's more like an umbrella view of human resource. उस management में then comes the human resource development. So obviously आप ये देख सकते हैं कि human resource development से पहले कौन सा part है? That is human resource planning, recruitment and selection. सो ये प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये पूरा एक प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स का, जो बैकलॉग के तौर पे पीछे से चला आ रहा है। आप उस वक्त तक ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि आप इन सारे प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। और उसके बाद फिर आपके इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बाद आपके compensation and benefits, safety and health, employee and labor relation, human resource research, ये सारे एरियाज आपके पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इसमें आना शुरू हो जाते हैं। So with this slide you can easily analyze कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ने के लिए, हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इटसेल्फ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली उसको इन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसके सिर्फ जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ मैप करते हुए आगे लेके चलेंगे। नॉट as a single human resource management itself, but as a combination of human resource management and human resource development. कि क्यों ये recruiting, staffing, establishment, ये सारी चीज़ें, selection, ये human resource development के लिए ज़रूरी है। As I said before, अगर foundation गलत होगी तो development भी आगे से पूरी की पूरी गलत होगी। So अगर human resource development के concepts को लेके हम लोग प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए उन रिसोर्सेज को फ्यूचर में डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वी विल सी ओरिएंटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, building effective team within organization structure, designing systems for appraising the performance of individual employees, assisting employees in developing career plan, very important thing as you do for your own children. आप बच्चों को नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाके क्या बना, उनकी छोटी छोटी सोच होती है, छोटी छोटी उनकी थिंकिंग होती है, और वो इम्प्रेस किसी चीज़ से अचानक हो जाते हैं, फाइनली वो एकदम कह देते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं आईटी प्रोफेशनल बनूंगा, या ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनूंगा। लेकिन इट इज़ यू हु नोज व्हाट इज़ द बेस्ट for your child. Same is the case over here, human resource development. It is you who knows what is best for your resources in organization. So उन resources का career path, उनकी capabilities, capacities, उनके performance plus उनका inclination, उस चीज़ को देखते हुए आपने उनका career path डिफाइन करना है, और फिर वो एक बार उस कैरियर पाथ पे चल जाएं, फिर उनके डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो डिफरेंट स्टेप्स वो कैसे कंप्लीट करते हैं, विल लुक टुवर्ड्स दैट लेटर। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर एंड कोऑर्डिनेट द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन कि वो एक्टिविटीज डिजाइन
फॉर एंड कोऑर्डिनेट, आप उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। व्हेन यू लिंकिंग द डॉट्स, आप उनको मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स देते हैं कि आपने इस स्टेप से इस स्टेप पे इस तरह जाना है, यहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आप इस स्टेप पे जाएंगे, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप इतने, आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल की इंक्रीज हो जाएगी। क्या आपको फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नहीं है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, नहीं करनी है, ऑल दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट बन जाती है। ट्रेडिशनली रेफर टू एज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल मैनेजमेंट, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो काइंड ऑफ अ थिंग। वो पुराने ज़माने की बात थी जहाँ उसको कहते थे पर्सनल मैनेजर या पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर। आजकल वो कन्वर्ट होगी ये चीज़ टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी तरह कैरियर प्लान्स के बाद आप उनकी कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स को थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप उसको एक अपना वेरिएबल बनाएंगे। क्यों? द रीज़न इज कि कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट आर द एक्चुअल फिश हुकर्स, ठीक है। वो बेसिकली आपका वो नेट है जिसके अंदर आपने, वो बेट सिस्टम है जिसके थ्रू आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है। वो अट्रैक्शन सिस्टम आप इसको आसान फाज में कह सकते हैं कि वो आपने वो अट्रैक्शन सिस्टम अपना क्रिएट करना है कि जिसकी बेस पे एम्प्लॉयज़ या मार्केट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये रिसोर्स पूल जो है, उस एक बड़े रिसोर्स पूल से वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आएंगे, या आप उनको किन बेसिस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह सेफ्टी एंड हेल्थ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किस हद तक सेफ हैं, उनकी हेल्थ किस हद तक वहाँ पे अफेक्ट हो रही है और उस हेल्थ को आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं। एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशन, ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉई और लेबर रिलेशन जो है उसको आप किस हद तक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, प्रोवाइडिंग ए ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉई कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को फर्दर डेवलप करना है। यहाँ पे आपके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपके काम आएंगे। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस जो हैं उन, अब हम ह्यूमन रिसोर्स की जब हमने डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, थोड़ा सा हमने उसको देख लिया, उसके बाद अब हम आके देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन क्या क्या हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आपके ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, उनको इंडक्ट करना, उनको सिलेक्ट करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने इसको हाईलाइट किया है जो कि हमारा मेजर टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद कॉम्पनसेशन बेनिफिट, सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। इसलिए मैं उस प्रीवियस स्लाइड पे गया था क्योंकि वो सारा एक क्रक्स था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरऑल का, एक ओवरव्यू था। उसमें अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को वहां से मैप करके आगे लेके चल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, tasks and duties performed in large or small organization to provide for and coordinate human resources। इसी के साथ talent management क्या चीज़ है? The broad spectrum of human resource activities involved in obtaining and managing firms' human resource। I repeat, talent management और human resource management में फ़र्क किस तरीके से है? The broad spectrum of HR activities involved in obtaining and managing firms' human resource. So human resource function is tasks and duties performed in small or large organization to provide for and coordinate human resources को coordinate करना। और talent management एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस मैं इसकी एग्जांपल आपको बिल्कुल लेमन एग्जांपल दूंगा, जैसे पाकिस्तान आइडल, आपने ये टैलेंट शो, ये टैलेंट हंट शोज जो होते हैं आपने वो देखा होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो देखते हैं कि हाँ पूरे पाकिस्तान में यानी कि 18-20 करोड़ लोगों में से वो उस स्पेसिफिक टैलेंट के कौन कौन से लोग हैं। तो वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से आप उसको नैरो डाउन करते 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 अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे आके आप फाइनली एक या दो बंदों को आप सिलेक्ट करते हैं। सो दैट इज योर टैलेंट मैनेजमेंट। हु परफॉर्म्स द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन? एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो कौन कौन परफॉर्म करता है?
ऑपरेटिंग मैनेजर्स मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट पुट किया है, दैट इज person who manage people directly involved with the production of an organization's product or services. ऑपरेशन मैनेजर जो होता है, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप बोल सकते हैं या फर्स्ट लाइन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, वो आपके ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं। आपकी जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया है या आपने जर्नल, जैसे हम बैंक वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम अक्सर एक डेजिग्नेशन लिखा हुआ देखते हैं ऑपरेशंस मैनेजर। उसका काम ये होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक प्रोडक्शन है या जो आपके फंक्शन परफॉर्म कर रही ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज हो गई या कोई डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट हो गई, तो उसमें आपका ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग मैनेजर होता है। ही इज द फर्स्ट इंटरेक्टिव पर्सन फॉर दोज रिसोर्सेज। प्रोडक्शन मैनेजर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लोन मैनेजर इन अ बैंक, सेम इज दैट केस. We are continuing with that, who performs the human resource function, human resource as journalist and human resource as specialist. Human resource as journalist is person who devotes a majority of working time to human resource issues but does not specialize in any specific area. Human resource specialist is a person specifically trained in one or more areas of human resource management, labor relations specialist, wage and salary specialist. So there's a difference. Human resource function में भी एक आपके पास ऑर्थोडॉक्स आ गया जो कि हमारे एक जेनेरिक किस्म का सिस्टम, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, वो वाला आ गया, और दूसरी तरफ आपका जो है वो मास्टर ऑफ स्पेसिफिक एरियाज, वो वाला आ गया। एज आई सेड बिफोर कि आजकल का जो ज़माना है या जो नेक्स्ट कमिंग एरा है, इसमें स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक फील्ड स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा वैल्यू है। जैसे हमारे एक ज़माने में होता था जी, डॉक्टर जो है दैट इज़ MBBS, और MBBS वाज अ ह्यूज थिंग, वाज अ बिग शॉट एट दैट टाइम। आज से कोई 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप किसी के साथ खाली MBBS लिखा हुआ देखते हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ नहीं जाते कि ये इसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ही इज़ नॉट मास्टर ऑफ समथिंग, ही इज़ अ जर्नल प्रैक्टिशनर। सो वो जो GP जो होता है वो उसकी वैल्यू कम होती है। सेम इज़ द केस ओवर हियर। एक ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट जो होता है वो अपना ज़्यादातर काम जो है वो डे टू डे इंटरेक्शन, डे टू डे टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और उनके इश्यूज और ओवरऑल जेनेरिकली वो चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट वो होता है जिसकी तरफ आप लोग अब जा रहे हैं, नॉट एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बट एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर। वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ सब स्पेशलाइजेशन। सो दिस स्पेशलाइजेशन इज़ कि आप इसी में आपके बहुत सारे वेजेस स्पेशलिस्ट आपके आ जाते हैं, सैलरी स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, एम्प्लॉयर लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट आ जाता है, लेबर मैनेजर आ जाता है। ये आपके जितने होते हैं ये आपके स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का वो एरिया कि जिसका काम होता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स एरिया है वो उसको मैनेज करे। उसका मेजर जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑपरेटिंग मैनेजर्स ऑन ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैटर्स। आपके जो ऑपरेटिंग स्टाफ जो है, उस ऑपरेटिंग स्टाफ / ऑपरेटिंग मैनेजर्स जो होते हैं, उनके जितने ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज होते हैं या उससे रेलेवेंट जितने इश्यूज होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दोज इश्यूज। वो उनको रिक्रूटमेंट से लेके, उनके परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन से लेके, उनके बोनसेस से लेके, ऑब्वियसली वो उनकी इनपुट होती है फ्रॉम देयर रिपोर्टिंग मैनेजर्स, लेकिन ये सारा का सारा काम फाइनली आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। Fulfill a traditional staff role and act in an advisory capacity. एक ट्रेडिशनल स्टाफ रोल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो भी प्ले कर रहा होता है, लेकिन एडवाइजर के तौर पे भी वो काम कर रहा होता है। मींस के ऑब्वियसली अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने एक बंदा हायर की है
जो टेक्निकल मैनेजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहा होगा, वो टेक्निकल मैनेजर उसके टेक्निकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को देख रहा होगा। लेकिन अदर देन द टेक्निकल इश्यूज, वो बहुत सारे इश्यूज जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लेवल पे या उसकी परफॉर्मेंस जिसकी बेस पे वैल्यूएट हो रही है, उसकी जो परफॉर्मेंस के जो इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे का सारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एज एन एडवाइजरी कैपेसिटी वो उसमें काम कर रहा होता है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस मे बी स्प्लिट बिटवीन ऑपरेटिंग मैनेजर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एज आई सेड बिफोर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स जो होते हैं, उन्होंने उनसे एक टेक्निकल काम लेना होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में उनसे काम लेना होता है, सेट पैटर्न में उनसे काम लेना होता है। लेकिन जो ओवरऑल आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो जो है वो आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन इन सम ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली आई हैव सीन दिस थिंग इन पाकिस्तान, इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन और मोस्टली इन ऑर्गेनाइजेशन ये काम जो है आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है या आपका ऑपरेशन मैनेजर जो है या आपका जो टेक्निकल लीड जो है, ये काम या ये फंक्शन जो है बहुत हद तक वो भी परफॉर्म कर रहा होता है, विच इज़ क्वाइट फाइन। कि इन सम केसेस नॉट नेसेसरी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो एक सेपरेटली हर प्रोजेक्ट में या हर टीम में एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो उसमें अपॉइंट करके अलग से वो उसको अपनी टीम का मेंबर बनाए और उसको जो है वो सैलरी भी और उसका ओवरहेड कॉस्टिंग भी हर चीज़ उसका हेड काउंट में वो उसका ऐड कर सके। इट्स नॉट पॉसिबल। सो इन दैट एरिया वो फिर टेक्निकल मैनेजर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी भी की जाती है, उनको भी इस लिहाज से फिर वो ट्रेन किया जाता है। और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो टेक्निकल मैनेजर को एक अच्छा रिसोर्स मैनेजर के तौर पे कैसे ट्रेन करते हैं, बिल्ड करते हैं। अदर फंक्शन इज customarily organizes and coordinates hiring and training, maintain personnel records, act as a liaison between management, labor and government. Yes, very important part in human resource management and also as a part of your human resource development. Liaison between management, first हम यहाँ से start करते हैं। किस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से आप लिएजॉन करते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आप लिएजॉन करते हैं बिटवीन एम्प्लॉई एंड द मैनेजमेंट। सेकेंडली आपका ऑर्गेनाइजेशन और लेबर का रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट का रिलेशन, ये सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। Coordinates safety programs. Obviously, it is the duty of a father or a mother to make sure how much their family, how much their children are safe and healthy. So in that capacity, क्योंकि वो घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तौर पे, डेवलपर के तौर पे, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के तौर पे, इन सारी कैपेसिटीज़ में वो पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो वही बात है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ जो कि उनके बच्चों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, वो उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी जहन में रखें। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैंने ये स्लाइड यहाँ पे सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि इट्स जस्ट गोना बी अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक और जर्नलाइज्ड असिस्टेंस human resource department provides to an organization. Specific services: maintaining employee records, handling initial phase of employee orientation, advice, disciplinary matters, equal employment opportunity matters, coordination, performance appraisal, compensation matters. 3 types of assistance provided by human resource department. Human resource department, you can see, is going upward towards specific services, downwards toward coordination. In between is the advice. Okay, if I say I link this advice box to specific services and also to the coordination, does that make any sense to you guys? Just think over it कि ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली है कि specific services as an advisory and coordination as an advisory for operation manager and human resource department, ये किस तरीके से होगी? Challenges for today's human resource managers.
diversity in the workforce, result of changes in government requirements, organizational structure, technology, management approaches. अब थोड़ा सा इस स्लाइड को अगर स्टडी करें और इसको थोड़ा सा सर्च भी करें, चैलेंजेस फॉर टुडेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, जो आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, लेट्स से कि वो एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे चलते आ रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले वो हायर हुए थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे फाइनली बिकेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फॉर दैट से मीडियम और लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. सो उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इस वक्त कौन कौन से चैलेंजेस सामने फेस करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू डेवलप एंड मेंटेन दैट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स. एक ज़माना था, एज आई सेड बिफोर, अगेन लेट्स गो बैक टू दैट MBBS एग्जाम्पल. एक ज़माना था कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप के डॉक्टर्स होते थे, एक स्पेसिफिक टाइप के इंजीनियर्स होते थे. अब मोस्टली आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रैक्टिशनर बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम. 90% आपके जो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, एक एरिया में वो स्पेशलाइज्ड होंगे. सो अब वो रिक्वायरमेंट के आपको एक MBBS, आपको एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आपको एक सिंपल इंजीनियर चाहिए, वो ऑप्शन आपकी कम से कम होती जा रही है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक डाइवर्सिफाइड किस्म के रिसोर्सेज की तरफ आती जा रही है. सो दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर करंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. नंबर 2 इज रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ से बहुत सारे आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स हो रहे हैं दूसरे मुल्कों में. जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ से वहाँ पे भेजते हैं तो उनकी भी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन कंट्रीज़ की अपनी एक स्पेसिफिक requirements आ गई. If you apply for an immigration towards Canada, Denmark or Australia, even they ask you for a specific field. So वो जो है वो government regulations जो हैं वो human resource pool जो है for that country, not for the organization, for that country, human resource pool जो है वहाँ से वो generalize से specified किस्म के resources को वो किस तरीके से move करें. Organizational structures, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आजकल, बल्कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आजकल स्पेशलाइज्ड किस्म के रिसोर्सेज को हायर करती हैं, उनके स्पेशलाइज्ड किस्म के ट्रेड्स हों, उनके अपब्रिंगिंग इस तरह की उनके पास ट्रेनिंग हो, सर्टिफिकेशन इस किस्म की हो, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग, किस्म की सर्टिफिकेशंस, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मैटर करता है. किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है उसमें किस तरीके से किस किस्म के आपके रिसोर्सेज जो हैं वो उसमें फिट इन हो सकते हैं. टेक्नोलॉजी अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है. इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज उनके पास हैं क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, क्या वो खुद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं. आई हैव सीन सर्टेन पीपल बीन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैंने देखा कि जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, अगेन दैट वाज सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उसमें देखा कि जो उनके एम्प्लॉयज़ थे वो से दे वर 70% ऑर्थोडॉक्स, लेकिन उनका जो HR मैनेजर था टोटली ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे वो काम कर रहा था. टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था. सो इन दैट केस टेक्नोलॉजी बिकेम अ ह्यूज चैलेंज फॉर दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास SAP जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया. सो वो जो ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन था उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो फॉर हिमसेल्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए था. सो ये चीज़ जो है ये टेक्नोलॉजी इटसेल्फ फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फॉर द एम्प्लॉयज़, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल इन दैट कंट्री, ओवरऑल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक चैलेंज बनता जा रहा है. मैनेजमेंट अप्रोचेस, प्रीवियसली हम लोग कभी भी हम लोग को
MBO का नहीं पता था. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट कि ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं और उसके बाद आप उसको मैनेज करते हैं और फिर उसकी बेस पे आपके जो है अप्रेजल होती है, परफॉर्मेंस होती है, एवैल्यूएशन होती है. सो ये मैनेजमेंट अप्रोचेस डिफरेंट किस्म की, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए इटसेल्फ एक चैलेंज बनता जा रहा है. Diversity in workforce. In human resource management, overall we'll see कि वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी, ये चीज़ हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे स्लाइड में सिर्फ इसलिए ऐड किया कि आप उसको कंपैरिजन कर सकें फ्रॉम 2004 टिल 2018. आपके जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है वो किस हिसाब से, ये किस तरीके से वो क्रिएट हो रही है. ऑलमोस्ट हाफ द न्यू एंट्रेंट्स विल बी women. White non-Hispanic males will comprise fewer than 1/3 of new labor force entrants. Average age of employee will climb to 42.3%. ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं बेसिकली ये यूएस के स्टेटिस्टिक्स हैं, क्योंकि इस तरह की स्टडीज मोस्टली वहीं पे कंडक्ट की जाती हैं. तो ये स्टेटिस्टिक्स मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाले हैं कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड एज home human resource manager, as human resource manager for an organization, or human resource development and trainer for a team. हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट एरा है उसमें किस किस्म के वर्कफोर्स आपको मिलेगी. आज आप एंट्रेंट होंगे, न्यू एंट्रेंट होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में. आज से 10 साल बाद आप एक मैनेजर, 5 साल बाद एक मैनेजर की पोजीशन पे होंगे. इन दैट कैपेसिटी you will find these statistics alarming for you कि आपको जो यंग लॉट है वो आपको कम मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस लॉट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी. लोगों का ट्रेंड जो है वो जॉब से हटता जा रहा है, मार्केट से जॉब ख़त्म हो रही है, जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है. लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. सो वो आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस वाले लोग जो हैं वो आते जाएंगे. इफ यू सी एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय विल क्लाइम टू 42.3%. सो white non-Hispanic male will comprise fewer than 1/3 of new labor force entrants. Almost half the new entrants will be women. It's an alarming thing for me. If you ask why, reason. अगर विमेन एंट्रेंट्स आपकी ज़्यादा होती जा रही है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपके जो काम का जो तरीका है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है, क्योंकि फीमेल स्टाफ का अपने कुछ इश्यूज होते हैं, मेल स्टाफ के अपने कुछ इश्यूज होते हैं, उस स्पेसिफिक सेगमेंट में आपको फीमेल स्टाफ के साथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा. आपके जो डायनामिक्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स, वो काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो जाएंगे. सो ये डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनर एंड डेवलपर, आपको ये डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स जहन में रखना चाहिए. Increasing globalization of many companies, defining diversity in global terms, looking at all people and everything that makes them different from one another, as well as things that make them similar. Diversity हम किसे कहते हैं? Okay, इस definition को हम लोग अगर value, habits and customs को हम लोग थोड़ा सा साइड पे करके एक generalized term में देखें, as a human resource learners, हम क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी आपके, मैं उसको इस तरह कहूँगा कि वो सब स्पेशलाइजेशन आपकी क्रिएट हो जाती है. डाइवर्स किस्म के आपके रिसोर्सेज क्रिएट होना शुरू हो गए. कुछ जो हैं वो PMP सर्टिफाइड होंगे, कुछ जावा सर्टिफाइड होंगे, कुछ जो है आपके GPHR ग्लोबल प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स सर्टिफाइड होंगे, HR सर्टिफाइड होंगे, SPHR सर्टिफाइड होंगे. इस तरह आपकी जो है वो डाइवर्सिफाइड किस्म की आपके रिसोर्सेज या वर्कफोर्स आपकी क्रिएट हो रही है. की ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड चैलेंजेस फेसिंग ग्लोबल कंपनीज, कल्चरल डिफरेंसेस, compliance with data privacy regulation, varying economic coordination condition across countries, time zone differences, legal environment, and international compliance. Human resource related challenges faced by companies, let's say
इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए है दैट इज़ टाइम जोन डिफरेंस. इसकी एग्जांपल मैं इस तरह पुट करता हूँ. एज माई सेल्फ बीइंग डायरेक्टर फॉर प्रोजेक्ट्स, आई एम एक्चुअली लुकिंग after 5 projects in 5 different countries, including Pakistan. There's a huge time difference between, like in America, from Pakistan, जब यहाँ पे सोने का टाइम होता है वहाँ पे जागने का टाइम होता है, जब वहाँ पे जागने का टाइम होता है यहाँ पे उस तरह वाइस वर्सा वो चेंज होता रहता है. सेम इज़ द केस आपका दुबई, आपका जो इजिप्ट है या सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी आपका टाइम डिफरेंस 2 आवर्स आपका वो चेंज हो रहा होता है. सो वो टाइम डिफरेंस मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इटसेल्फ, खासतौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसोर्स कर रही हैं रिसोर्सेज को या अपने काम को आउटसोर्स कर रही हैं, उनके लिए ये टाइम डिफरेंस जो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. लीगल एनवायरनमेंट, सेम इज़ द केस. आपको इसकी एग्जांपल मैं इस तरह पुट करूंगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस हिसाब से लीगल इश्यूज वहाँ पर हैं. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की जो लीगल कंडीशन है या सिक्योरिटी कंडीशन, इसके साथ साथ यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं चाइल्ड लेबर के लिहाज से वो स्ट्रिक्टनेस हो गई है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम दे रही हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम देने का अवॉइड कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर लॉ जो है वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता. इंटरनेशनल कंप्लायंसेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ISO सर्टिफाइड कर रही हैं. रीज़न बीइंग कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो CMM सर्टिफाइड या CMM कंप्लायंस वो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस को क्रिएट कर रही हैं सो दैट कि वो इंटरनेशनल कंप्लायंस वो फॉलो कर सकें. Challenges and contributions of diversity. Organization must get away from fitting employees into a single corporate mold. Must create new human resource policies to explicitly recognize and respond to unique needs of individual employees. Challenges and contribution of diversity. A very important topic, not only for human resource management, but also a sub-part of human resource development. If you see, organization must get away from fitting employees into a single corporate mold. एक सेम सिस्टम, सेम मशीनरी और उसी में हर एम्प्लॉय को उससे गुजार के आप आगे लेके जाओ, इट्स एन ओल्ड ऑर्थोडॉक्स अप्रोच. आजकल के ज़माने में कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशंस को उठा के देख लें, एंटरप्राइजेस को उठा के देख लें, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, याहू हो गया, आपके एडोब हो गया, ये फेसबुक हो गया, ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं IT से रिलेटेड, उनके जो एम्प्लॉई मोल्ड्स हैं वो हर ट्रैक के लिए अलग हैं. इफ़ यू आर अ टेक्निकल पर्सन उसके लिए अलग है, इफ़ यू आर अ जनरल मैनेजमेंट पर्सन उसके लिए अलग है, इफ़ यू एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन उसके लिए अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनके लिए अलग है, टेक्निकल स्टाफ उसके लिए अलग है, लेबर स्टाफ उसके लिए अलग है. सो वो एक जर्नल मोल्ड नहीं है. इट्स नॉट समथिंग कि वो हर किसी को एक ही सांचे में ढाल के एक ही तरीके से वो आगे लेके चलें. इट्स नॉट दैट. वो हर किसी के लिए हर टाइम के लिहाज से उसको चेंज करते हैं. मुझे यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल एक मुझे याद आता है जब भी मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से मैं टीच कर रहा होता हूँ या कोई कोर्स करा रहा होता हूँ. वो ये है कि अपनी औलाद को उस तरीके से, मैं मफहूम बता रहा हूँ कि अपनी औलाद को उस तरीके से मत पालो जिस तरीके से तुम्हारी परवरिश की गई थी, क्योंकि तुम किसी और वक्त के थे. सो ये सुभान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी, हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी हकायत है, ये बहुत बड़ी सेइंग है. और अगर हम इसको गौर से थोड़ा सा समझें तो हमारी जिस तरीके से परवरिश हुई वो और टाइम था, हमारे डायनामिक्स, एनवायरनमेंट कुछ और था. जो आने वाली नस्ल है उसके डायनामिक्स, उसका एनवायरनमेंट कुछ और होगा. सो इस लिहाज से हम लोग को वो सेम मोल्ड लेकर नहीं चलना. हमने अपने जो होम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमने उनको उस तरीके से नहीं पालना जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई थी. हमने उनको उस वक्त के चैलेंजेस, रैपिड चेंज, यू रिमेंबर द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, उसमें जो मैंने रैपिड चेंज को हाईलाइट किया था, हमने उस रैपिड चेंज को अडॉप्ट करना है. और अगर हम लोग एज वी बीइंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, वी बीइंग पेरेंट्स, हम लोग क्योंकि घर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, अगर हम अपने आप को उन
चैलेंजेस या उस रैपिड ग्रोथ या रैपिड चेंज के साथ अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे या इक्विप नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने होम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हम लोग प्रॉपर्ली डेवलप या गाइड नहीं कर सकेंगे। वो एडवाइजरी रोल हमारा डिमिनिश होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। Communication problems that arise will necessitate additional training in written and spoken language skill. Diversity में आपकी obviously जो communication problem है वो आपकी training या जो language skill है वो उससे आप बहुत हद तक overcome कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग next जो चीज़ देखेंगे that is your regulatory changes. Organizations face new regulation routinely issued in areas of safety and health, equal employment opportunity, pension reforms, quality of work life. Let's go back to a certain time period जहाँ पे वो हमारा एक orthodox bureaucratic system होता था। मैं उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ले सकता हूँ। हमारे जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आप पाकिस्तान पोस्ट को उठा के देख लें या आप जो है PTCL को, आप इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को उठा के उनको स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका एक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक स्पेसिफिक किस्म का होता था। अब आप अगर उनको जाके विजिट करें ना, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो गया। उन्होंने उस चीज़ को विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने उस चीज़ को गुजरते वक्त के साथ उस चीज़ को अडॉप्ट किया या अपने आप को अडेप्ट किया है उस इन्वायरमेंट के लिहाज से। सो वो जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या वर्क लाइफ जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो जो आप चेंज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सेकेंडली, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दे ट्राई टू मेक योर लाइफ एज इजी एज चार्मिंग एज पॉसिबल टू नॉट ओनली टू अट्रैक्ट यू but also to make your quality of work life in that organization or that time span that you spend in that organization, हम अपने दिन का बेहतरीन हिस्सा एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे होते हैं या आपके एम्प्लॉयज़ अपने दिन का या अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन टाइम या हिस्सा वो आपको दे रहे हैं। आपने उस टाइम को किस तरीके से बेहतर बनाना है उनके लिए कि वो वहाँ पे काम करते वक्त खुशी महसूस करें। पेंशन रिफॉर्म्स, हमें इसके बारे में कुछ को आइडिया होगा कुछ को नहीं होगा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग, लेकिन ये है कि आपके जर्नली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, बजट में अक्सर आप देखते हैं जी पेंशन इतने % इंक्रीज हो गई या पेंशन के ये रिफॉर्म्स हो गई या EOBI फंड जो है वो इतना हो गया। सो वो आपके रिफॉर्म्स ये जर्नल आपके रेगुलेशन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहे होते हैं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपके कोटा सिस्टम वगैरह मैं एग्जांपल के तौर पे पुट कर रहा हूँ, आपके कोटा सिस्टम हो गया, मेल फीमेल जेंडर सिस्टम हो गया, ठीक है। ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को, सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन के जो आपके सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लार्ज एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो भी इसके अंडर बाज़ात आ जाते हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, आपके उसके भी कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हैं आपके लेबर्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आपको कितने कौन कौन से आपको पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, और हेलमेट सारा हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, XYZ उनके प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके जो आगे एम्प्लॉयज़ हैं जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनके सेफ्टी एंड हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपकी रेगुलेटरी चेंजेस हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो उसको आगे उस चीज़ को फॉलो कराए। स्ट्रक्चरल चेंजेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग एंड आउटसोर्सिंग, ये वो चेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि जो एक एम्प्लॉई के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज भी हैं, और ये चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो भी करती हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी फॉलो करते हैं। डाउनसाइजिंग, लेइंग ऑफ लार्ज मेंबर ऑफ मैनेजरियल एंड अदर एम्प्लॉयज, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस डाउनसाइजिंग टर्म। Outsourcing, subcontracting work to an outside company that specializes in that particular type of work.
हमारे यहाँ आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले से एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था कॉल सेंटर का। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे ये चाइना इवन के यहाँ पे ये कॉल सेंटर का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। नेक्स्ट इज राइट साइजिंग एंड री इंजीनियरिंग, अगेन स्ट्रक्चरल चेंजेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन in terms of human resource development and in terms of human resource management. Right sizing, continuous and proactive assessment of mission critical work and its staffing requirement. राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में फ़र्क है, कॉन्सेप्चुअली भी फ़र्क है और प्रैक्टिकली भी फ़र्क है। री इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट, क्वालिटी सर्विसेज एंड स्पीड। ओके, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम लोग इसको यूजुअली कहते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में या री इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने जो बिजनेस प्रोसेस होता है उसको ओवरऑल वो चेंज करते हैं इस तरीके से कि उनका जो काम है वो पहले अगर 2 दिन लेता था तो अब वो प्रोसेस उसको मिनिमाइज करके उसमें जो लेंथी चीज़ें हैं उनको ओमिट करके उसको इस तरीके से पुट किया जाए कि वो काम आपका चंद घंटों में या 1 दिन में हो जाए। सो ऑब्वियसली वो आप 1 दिन की पूरी कॉस्ट बचा रहे हैं। 1 दिन की कॉस्ट से मुराद पूरी ऑर्गेनाइजेशन का 1 दिन का पैसा बच रहा है, वो सारे एक्सपेंडिचर बच रहे हैं। आपको वो प्रोसेस री इंजीनियरिंग होने की वजह से आपके बहुत सारी बीच में से जो लीकेजेस होते हैं वो लीकेजेस ख़त्म हो जाते हैं और उसी री इंजीनियरिंग की वजह से आपकी पर हेड कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है, आपका जो टाइम है वो स्पीडी हो जाता है। आपने अगर ओवरऑल वही इसका अगर हम प्रोजेक्टाइल इफेक्ट देखें ऑन प्रोजेक्ट्स जो कि 1 साल का 2 साल का प्रोजेक्ट है तो वो आप देखें कि वो एक दिन अगर इस तरह पीछे काम हो रहा है ऑलमोस्ट आपके मंथ्स में जाके वो टाइम कन्वर्ट हो जाता है। सो ये री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस एक इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन जाता है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एरा एंड अपकमिंग एराज, टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल चेंजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर एंड ट्रेनर के लिए टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल चेंजेस किस हद तक रोल प्ले करती हैं। Computerized information systems are now being used to maintain easily accessible employee data that are valuable in job placement and labor utilization. Also being used in employee training, succession planning and compensation management and to track and report affirmative action activity. Nowadays, once you become a human resource manager, अब वो ज़माना वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप एक जगह पे जाके एक रिसोर्स के ट्रैक रिकॉर्ड, वो पुराने पेपर्स, वो फाइलें निकाल के देखें और फिर उसके बाद उनके दूसरे मैनेजर से, लाइन मैनेजर से, टेक्निकल मैनेजर से उनसे जाके बात करें, उनके बारे में रिपोर्ट लें, वो फिर अपने पास फाइल करें। वो पुराना जो एक हमारा खातादार सिस्टम होता था, अब वो ज़माना नहीं रहा। न्यू एरा इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। हर चीज़ आपके समराइज होकर कंप्यूटर पे आ गए, कंप्यूटर से आपके लैपटॉप टेबलेट्स आपके मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ आपके टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती जा रही है। सेम एज द केस ओवर हियर, आपके ह्यूमन रिसोर्स का जो रिकॉर्ड है, आपके रिसोर्सेज रिकॉर्ड जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS आपका या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है ये अब मार्केट में इन हो चुका है। आपके पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज के उसमें आपकी लीव्स आपकी कितनी अवेल हो चुकी हैं, कितनी आपके अभी पड़ी हुई हैं, LFA आपका कितना है, आपके आवर्स कितने कैलकुलेट हुए हैं, आपने पर वीक कितना काम किया, क्योंकि डेली वेजेस पे भी काम होते हैं, आपके आवर बेस पे रेट पे आप चार्ज हो रहे होते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। आपके वो सारी रिपोर्टिंग, आपके परफॉर्मेंस जब इवेंट के वैल्यूएशन होती है तो सिंपल विद इन 1 क्लिक आपको वो समराइज करके बता देता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस स्पेसिफिक टाइम में ये थी। आपके पास पूरे ग्राफ्स बन जाते हैं। हाँ जी, पहले आपका एम्प्लॉय जो था वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय वो इस लेवल पे जा रहा था, अब उसके जो ग्राफ है वो डाउन हो गए। डाउन क्यों हो गया, फिर उसके लिए उससे डिस्कशन होती है। आप
आप उससे आप देखते हैं हाँ क्या इसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या इसको स्पेसिफिक एरिया में हमने डेवलप करना है, या ये कितने बाहर के टिप्स लगा चुका है। एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल ऑन दैट सिंगल सिस्टम। सो ये जो टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल चेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो है एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर, ये आपके लिए इट्सेल्फ इनको अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल चेंजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम और टेली कम्यूटिंग। आई माई सेल्फ in a week I go to office 3 days a week and rest of the days I work from home. So ये टेली कम्यूटिंग जो है ये आपके आजकल एक बेनिफिट के तौर पे भी या फ्रिंज बेनिफिट्स में पैकेज में भी ये चीज़ बहुत हद तक इंक्लूड की जाती है, और वो एम्प्लॉयज़ रिटेंशन में ये चीज़ बहुत काम करती है। एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ इन होम कंट्री और ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। सेम इज़ द केस, आप अगर किसी और जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ भी आप टेली कम्यूट कर सकते हैं। Next is empowerment, forms of decentralization that involves giving subordinates substantial authority to make decision. वो एक पुराना ज़माना होता था कि जहाँ पे मैनेजर ही सब कुछ होता था, और उसके बाद वो आगे अपने सिर्फ एक डिक्टेशन के तौर पे उसने अपनी एक टीम रखी होती थी। अब वो मैनेजरियल चेंजेस आना शुरू हो गई इंडस्ट्री में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में। अब आप एम्पावरमेंट की तरफ मूव करना शुरू हो गए, आप अपने रिसोर्सेज को एम्पावर कर रहे होते हैं, लेकिन नॉट इन अ वे कि आपने बस उनको एम्पावर कर दिया। फर्स्ट यू ट्रेन दैम, यू सी द कैपेसिटी विद इन दैम, यू सी द पोटेंशियल विद इन दैम। उस पोटेंशियल की बेस पे you'll empower them with certain decisions. Self-managed work team, very important. As I said before, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि groups of peers that are responsible for a particular task or areas, self-managed work team, आपका वर्किंग ग्रुप आप क्रिएट कर देते हैं, who are self-managed, वो उन्होंने खुद ही अपने सारे काम करने होते हैं, अपने काम करके वो उस टास्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म करके उसको कंप्लीट करते हैं। Human resource management in the future. Human resource manager must be integrally involved in organization strategic and policy making activities. Human resource managers need to overcome negative impressions and biases sometimes associated with this field. Become well-rounded business people, understand business complexities and strategies. एक ज़माना था कि जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या पर्सनल मैनेजर के तौर पे देखा जाता था कि हाँ जी उसका कोई एम्प्लॉय का कोई पर्सनल इशू है, कोई छुट्टी का इशू है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको देखेगा। लेकिन अब ज़माना, अब टाइम चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज आ रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करके अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक स्ट्रेटेजिक रोल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो गया और यह होना शुरू हो गया। रादर आई वुड लाइक कि यू पीपल बिकम द फाउंडेशन फॉर दैट रैपिड चेंज, और वो जो एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रेटेजिक चेंज। इसमें मोस्टली अब ऑर्गेनाइजेशंस जब भी अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बीच में इंक्लूड करती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी नज़र इस तरीके से होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज को देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज ऑब्वियसली बेस कर रही है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होंगे, किस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, किस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ये 3 एरियाज को वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि वो उसमें डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, स्टाफिंग का एस्पेक्ट और यूटिलाइजेशन का एस्पेक्ट, इन तीनों एस्पेक्ट को वो अपने सामने रखे, एक ट्रैकर बना के वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज में उसको फिट इन करे। Becoming more familiar with the business, know the company strategy and business plan, know the industry, support business needs, spend more time with the line people, keep your hand on the pulses of the organization, learn to calculate costs and solution in hard numbers. Last one, not the least, but the most important part for human resource developer. Learn to calculate cost and solution in hard numbers. ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर का ये काम होता है कि वो, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम है नेक्स्ट टाइम में या वो आगे फ्यूचर में, कि वो
ह्यूमन रिसोर्स की बेस पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करे, कैलकुलेशन करे। हाँ जी, इस प्रोजेक्ट में पहले 4 लोग काम कर रहे थे, मेरे पास इस तरह के 2 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जो उन 4 लोगों का काम कर सकते हैं। This is the part of human resource manager, not the project manager. I have seen that kind of human resource managers and developers. उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रेन किया, उनको डेवलप किया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि विद इन 5 years वो केपेबल हो गए कि वो 2 लोगों या 3 लोगों का काम वो सिर्फ एक बंदा कर सके। अगेन कुडोस फॉर दोज पीपल, उन इस तरह के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं। लास्ट topic of today's lecture is questions for understanding the organization business strategy. मैं ये इस स्लाइड के ऊपर आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इनके जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देंगे। ये सिर्फ आपके अपने समझने के लिए है, सो दैट इन नेक्स्ट लेक्चर जब आप आएँ तो यू कम प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस। लेकिन इन चीज़ों को आपने, गोल्स को नेक्स्ट 4-5 years फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है कि इफ़ यू बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर एंड ट्रेनर, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट 5 year स्ट्रेटेजी में कहाँ फिट इन होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट लेक्चर विल सी ईच अदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।